سکتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ وادی کے ونٹر ٹورزم میں بہت اہم رول ادا کرے گا۔ ہماری گزارش ہے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ صاحب سے کہ آپ ویلکم ایڈریس کے لیے تشریف لائے۔ جناب عمر عبداللہ صاحب۔ Honorable Prime Minister Janab Narendra Modi Sahab, Honorable Minister for Road Transport and Highways Janab Nitin Gadkari Sahab, Honorable Lieutenant Governor J&K Janab Manoj Sinha Sahab, Honorable MOS PMO Dr. Jatinder Singh Sahab, Honorable MOS Road Transport and Highways Ajay Tamka Sahab, میرے کابینہ کے ساتھی ڈپٹی چیف منسٹر سریندر کمار چودھری صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن J&K اسمبلی سنیل شرما صاحب، آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ غلام علی کھٹانہ صاحب، یہاں موجود بھائیوں بہنوں بزرگوں خواتین و حضرات، آپ سب کو میرے طرف سے آداب۔ گرمیت سنگھ جی، انل کمار شکلا جی، فہیم نذیر صاحب، ششی ابرول جی، محمد حنیف صاحب، کلیم صاحب، بڑگام کے ہمارے اپنے ڈاکٹر شاہ نواز، یہ 7 نام لیے بنا اگر میں اپنی تقریر شروع کروں تو شاید ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ یہ 7 نام جو میں نے لیے، یہ وہ شخص ہیں جو پچھلے سال اکتوبر کے روز ایک آتنکوادی حملے میں ان کی قیمتی جانیں جو ہیں ہم نے گنوائیں۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانی اس پروجیکٹ کے لیے دی، جموں کشمیر کی ترقی کے لیے دی، اس ملک کے لیے دی۔ جس طرح بدقسمتی سے پچھلے 35-37 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کی ترقی، جموں کشمیر کی ترقی، جموں کشمیر کی جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے قربانی دی۔ میں اس ایسے سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں جس کے ہزاروں لیڈر اور ورکر پچھلے 35 سال میں قربان ہوئے، کیونکہ ہم ملک کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ملک کا بٹوارا ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آگے بھی پتہ نہیں کہ کیا کیا قربانیاں مانگی جائیں گی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب، آپ کا آج یہاں موجود ہونا اس ٹنل کے انوگریشن کے پروگرام پہ، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ لوگ جو یہ حملے کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کی بہتری نہیں چاہتے، وہ لوگ جو جموں کشمیر میں ترقی، امن، جمہوریت کو قائم ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کو ہمیشہ یہاں ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو ہمیشہ ہم یہاں سے ہرا کے واپس بھیجیں گے، اور اس ملک کو اور جموں کشمیر کو اور جموں کشمیر کی جمہوریت کو ہم کبھی یہاں نقصان ہوتے ہوئے جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ جموں کشمیر کے لوگ آج اس بات سے بہت ہی زیادہ مطمئن ہیں کہ یہ ٹنل کا شبھ آرمبھ آپ کے ہاتھوں ہوا۔ یہ شاید میری خوش قسمتی ہے کہ جب اس ٹنل کے لیے فاؤنڈیشن سٹون سنگ بنیاد رکھا گیا، تب بھی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ بارڈر روڈز کا پروگرام تھا 2012 کا، تب سے ایک لمبا عرصہ بیتا، بڑے وجوہات تھے، بہت مشکلات سامنے آئیں،
प्रोजेक्ट शुरू हो नहीं पाया, लेकिन फिर आपके हाथों और जनाब नितिन गडकरी साहब के हाथों पिछले कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट में तेजी आई और आज ये सोनमार्ग का टनल, जिसको इससे पहले ज़ेडमो टनल के नाम से जाना जाता था, अब सोनमर्ग टनल के नाम से जाना जाता है, आज इसकी शुरुआत हुई। इस टनल का यहाँ के लोगों को बहुत अरसे से इंतजार था। इस टनल के वजह से अब लोगों को सोनमर्ग छोड़ के निचले इलाकों में सर्दियों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल के 12 महीने यहाँ टूरिज्म होगा। एक विंटर टूरिज्म के डेस्टिनेशन के तौर पे हम सोनमर्ग को डेवलप कर पाएंगे और इसके साथ साथ जो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी हम तेजी लाने में कामयाब होंगे। वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है उसका भी बहुत फायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है, चाहे वो मच्छिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे केरन हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से। हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फायदा जो है वो कर रहे हैं और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सोनमर्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिदा करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम, मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिदा किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं, ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं,
बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है, आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी। जम्मू कश्मीर को जहां पर्यटन की दृष्टि से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, वहीं हस्तशिल्प, उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों से जुड़े कारीगरों, उद्योगपतियों और किसानों को भी यहां सशक्त बनाया जा रहा है। अब हमारा सादर अनुरोध है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे संबोधन के लिए कृपया तशरीफ लाएं। मंच पर विराजमान भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब, मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी जी, भारत सरकार के मंत्री अजय टामटा जी, राज्यसभा के सदस्य। Comes to the inauguration of the tunnel, the Sonmarg tunnel. We just heard the Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah, and we are standing by for the Prime Minister to speak on this historic occasion. Heading into a short break.